Hello students, we were discussing the chapter number 3 classification of elements and periodic properties. So in the chapter, let's have some summary what we have discussed in the chapter. First of all, genesis of periodic table. After that, electronic configuration in groups and periods. The third one, physical properties, that was atomic radius and its variation. Fourth one is ionization enthalpy and its variation. Fifth one is electron gain enthalpy and its variation. So these are the topics we have discussed in the previous videos, and the relation of these three properties with the Z effective was radius is inversely proportional to the Z effective, where ionization enthalpy was directly proportional to the Z effective, and negative value of delta EGH, electron gain enthalpy, was also directly proportional to the Z effective. On the basis of these formulas, we have discussed the variation of the properties through the periodic table from top to bottom in the group and from left to right in the period. So today we are going to discuss some more questions of the exercise, so that you can learn and topic will be more clear to you. So the question number 18, that is, what are the various factors due to which ionization enthalpy of main group element tend to decrease down to the group? Main factor tend to decrease down to the group. What is ionization enthalpy? Down to the group decreases down to the group. So main factors, first the size of atom. Size of atom means number of shell increases and the distance of electron from the nucleus increases, hence ionization enthalpy will be low. Next one, the Z effective, nuclear charge. Z effective is also decreases down to the group, decreases in the group. So according to the relation, ionization enthalpy directly proportional to the Z effective, and Z effective down to the group decrease, so ionization enthalpy will also be decreased. So these are the main reasons. Next one, question number 19, that is the first ionization enthalpy of the elements values given in kilojoule per mole of group 13, boron, aluminium, gallium, indium and tellurium. चलिए चेक करते हैं. In the aluminium and gallium it is increased. Aluminium it is 557, whereas in gallium it is 579. It is nearly equal, we can say. ठीक है, ये जो थोड़ा सा चेंज जो दिखाई दिया, ये ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो हम इसको नियरली इक्वल बोल सकते हैं. इक्वल क्यों बोल सकते हैं? इसका मेन रीजन ये है बिकॉज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ गैलियम. रीजन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग एक बात है. स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है. हमने क्या बताया था? एल्यूमिनियम के लिए चेक करते हैं टॉपिक नंबर 13. इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. But for gallium, for the atomic number 31, it will be argon 18, 3p10, 4s2 and 4p1. So the facing orbital of the second last cell third, facing orbital p, last cell 4, facing orbital d. So the shielding effect
has the trend SPDF. S will shield highest, P will shield less than S, D will shield less than P, and F will shield less than D. So D will shield less than B, and hence this spot shell will be more attracted toward the gallium, and the atom will shrink. Atom will shrink so that radius will be equal, nearly equal of gallium and aluminium, and hence their ionization enthalpy are also nearly equal. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 चेक कर लेते हैं. Which of the following pair of element could have a more negative electron gain enthalpy? More negative electron gain enthalpy. First pair is oxygen and fluorine, and second one is fluorine and chlorine. So more negative electron gain enthalpy. As we know, negative value of delta EGH is directly proportional to the Z effective. So Z effective, as we know, in the period it is increasing, and down to the group it will decrease. So oxygen to fluorine, it is a group, sorry, it is a period, and Z effective trend will be oxygen will have less than fluorine. So the Z effective of fluorine will be higher than oxygen, and negative value of gain enthalpy will also be increased. But in case of fluorine and chlorine, for the Z effective will be more for fluorine. Z effective will be more for fluorine than chlorine, but there are some reasons. It is an exception of gain enthalpy. One more reason, F has high electron density than chlorine. First reason. Second, F will not favor to accept इलेक्ट्रॉन इजीली. ठीक है, फेवर करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट इट विल नॉट रिलीज मच मोर एनर्जी एज क्लोरीन डज. जितना कि क्लोरीन करता है उतना फ्लोरीन नहीं करेगा. सो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH विल बी हायर फॉर क्लोरीन देन फ्लोरीन. ये हमने पढ़ा था. चलो नेक्स्ट 21. वुड यू एक्सपेक्ट टू सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो. चलिए चेक करते हैं कैसे होगा, क्या होगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21. Question number next 21. Would you expect the second gain enthalpy of oxygen as positive? Oxygen gain enthalpy, oxygen negative and oxygen 2 negative, EGH first, EGH second. चेक कर लेते हैं. ठीक है, as positive, more negative और less negative than the first. सेकेंड और फर्स्ट का कंपैरिजन करना है, ज़्यादा नेगेटिव होगा कि कम नेगेटिव हो गया. चलिए यहाँ इस वाले केस में हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चेक करते हैं 8 and 8. इस केस में, सेकेंड वाले केस में, जब ये O नेगेटिव बना आफ्टर फर्स्ट गेन इन एंथैल्पी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ 9, प्रोटॉन अभी भी 8 ही है, तो Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है. ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टैंड हुआ, प्रोटॉन अभी भी 80 है, जेड इफेक्टिव। फर्स्ट अगर केस में देखे जाए तो ये अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस केस से तो कम कर पाएंगे लेकिन कर पाएंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। अगर ये प्रोसेस फर्स्ट है और ये प्रोसेस सेकंड है तो Z इफेक्टिव ऑफ प्रोसेस फर्स्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड, and hence delta EGH, negative value of delta EGH will be more for the first process. Means delta EGH first for oxygen is much more negative than the second gain enthalpy. So first gain enthalpy will be more negative than कौन, delta EGH first will be more negative than delta EGH second, So this was the concept and चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया, तो अब हमको नया कंसेप्ट एक स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, फिर हमने पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हमने पढ़ा गेन एंथैल्पी एंड देयर एक्सेप्शंस एंड क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिनोटेड बाय EN, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक केवल पावर है, ये एक अट्रैक्शन है। ठीक है, अट्रैक्शन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। सिंपली एक इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे तरीके से कोई एटम अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसमें क्या था, गेन एंथैल्पी में था एनर्जी, कितना एनर्जी को रिलीज करता है। बट यहाँ पर क्या है कि किस अट्रैक्शन से वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, सिंपल सी बात है, सबसे पहला एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, और एज वी नो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल और एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, सो वी कैन से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, और एक बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हमने कहा टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट कौन करेगा, अगर न्यूक्लियस के अंदर उसके पावर होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसके चार्ज होगा, तो जितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, मींस जेड इफेक्टिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, सारे कंसेप्ट आप जेड इफेक्टिव से अटैच रखेंगे तो सारे जल्दी याद होंगे। अभी तक एक ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, दैट वाज रेडियस, अदरवाइज सारे जितने भी हमारे कंसेप्ट थे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन से ENC और जेड इफेक्टिव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू द पीरियड टेबल। चलिए variation of electronegativity through periodic table चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप और वी कैन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम
टॉप टू बॉटम चेक कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम के लिए हम दो किसी भी दो एटम्स को लेंगे और 281 Z इफेक्टिव आपको पता ही है, Z इफेक्टिव डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, so Na will have higher Z effective than A. Again, electronegativity for sodium will also be greater than that of the three. Simply, ठीक है। चलिए चेक करते हैं in the period or we can say from left to right, चलिए चेक करते हैं left to right. If we have oxygen and fluorine, then Z effective of fluorine is much more greater than that of oxygen, and hence electronegativity of F will be greater for oxygen. इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है और डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो घटता है। तो लेफ्ट टू राइट जाए यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, और डाउन टू द ग्रुप घटेगा। तो यानी कि इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है, दैट विल बी द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, एंड इट इज फ्लोरीन। It is fluorine atom because fluorine having 9 इलेक्ट्रॉन in just 2 shells, केवल 2 शेल के अंदर उसके 9 इलेक्ट्रॉन है, वो भी पहली और दूसरी शेल है। पहली शेल में तो मैक्सिमम ही तो होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड शेल में अपने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। बट 8 तो नहीं है, 8 होगा तो नोबल गैस हो जाएगा, फिर नियोन बन जाएगा, लेकिन उससे जस्ट एक कम है, 7 इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। चलिए, तो ये था आपका वेरिएशन थ्रू periodic table of electronegativity into the group and down to the group and into the through the period, ठीक है। चलिए, एक और स्केलिंग है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको उसके बारे में बात करते हैं। कई बार जनरली डिस्कस किया जाता है पोलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आते। एक बोला जाता है पोलिंग स्केल। क्या है ये पोलिंग स्केल? चलिए चेक करते हैं। Group number 14, 15, 16 and 17। चलिए, ये आपका एस ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका पी ब्लॉक यहाँ से तक। तो इसमें मेजर करते हैं। तो पोलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायगोनल्स खींचे, और डायगोनल्स में उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स विच आर लाइन ऑन द सेम डायगोनल हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, उससे कम होगा इस डायगोनल का। ठीक है, उससे कम होगा इस डायगोनल का, नेक्स्ट होगा इस डायगोनल का, फिर इस डायगोनल का, फिर ऐसे। तो उसने एक ये डायगोनल्स बनाए, ठीक है। उन डायगोनल्स पे लाई करने वाले एलिमेंट्स का जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आएगा, ऐसा कुछ था। तो चेक करते हैं, उसने कहा था कि जिसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, जिस डायगोनल के पास, उस डायगोनल का हाईएस्ट होता चला जाएगा, जैसे कि ये, ठीक है। डाउन टू द ग्रुप वी हैव मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो डायगोनल में नीचे वाला उनका कम होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू भी है, अगर मैं मेजर करूँ, ये होता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू, तो 0.5 ये घटता चला जाता है इस साइड, ठीक है। यहाँ ये केवल इतना याद रखना है, अगर याद करना भी है तो। हाइड्रोजन को होता है 0.1
0.1, ठीक है। लिथियम को होता है 0.9, सॉरी 1.2 के आसपास होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1.2 के आसपास होता है, तो 0.9 ऐसे चलता चला जाता है, डाउन कम होता चला जाता है। तो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, वैसे वैल्यू कभी याद नहीं रखनी है, बस कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड थ्रू द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 चलिए। सबसे पहला है हमारा डिफरेंस बिटवीन, जो कि हमारा नेक्स्ट शायद क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो पहले मैं गेन एंथैल्पी को डिफाइन करता हूँ। ये है एनर्जी रिलीज व्हाइल एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन किसका है, कंपैरिजन ऑफ जेड इफेक्टिव। सिंपली जेड इफेक्टिव वो पावर है जिसके थ्रू हम एटम, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले तो ये होगा। फिर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बिटवीन, अगर डेल्टा EgH का वैल्यू देखा जाए नेगेटिव, ये ज़्यादा होगा क्लोरीन के लिए, क्योंकि क्लोरीन के पास साइज ज़्यादा है, आपके पास साइज कम है। फ्लोरीन विल नॉट फेवर टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, बट इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन will have high electronegativity than chlorine, high electronegativity than chlorine. So this was the complete concept about the electronegativity, and we will discuss some question in the next video. So that's all for today, and thanks for watching the video.